Location, boundaries and physical divisions. Australia, the largest island and the smallest continent in the world, lies entirely south of the equator and is called the land down under or even the island continent. Australia is newer than the New World. Europeans settled first in American continents and did not discover Australia until the early 1770s and explored it even much later. The origins of modern Australia date only from the first British settlement in 1788. A Dutch ship sailed along the coast of northern Australia in 1606, but with little interest in the island, and discovered the island, now known as Tasmania. Long after Tasman's voyage, the British government sent a ship, led by James Cook, to know more about the island. Captain Cook, on reaching the Australian coast in 1770, hoisted the flag on Australia's fertile east coast and claimed it for England. He named this part New South Wales. Australia celebrates its National Day on January 26th. Australia entirely lies in the southern hemisphere and in the eastern hemisphere of the globe. In the west, the Southern Ocean in the south and the Pacific Ocean in the east. The Great Australian Bight forms an arch along the southern coast, and the Gulf of Spencer and the Encounter Bay lie on the southeast. Australia lies close to Southeast Asia, and many islands stretch between them. They are remnants of the land bridge that once connected the two continents millions of years ago. Beyond the east coast stretches the Pacific Ocean, with the Tasman Sea in the south and Coral Sea in the north. Timor Sea lies in the northwest, the Arafura Sea in the northeast, and the Gulf of Carpentaria along the northern coast. The Cape York Peninsula forms the northeast tip of Australia. The Great Barrier Reef, made up of coral deposits, runs parallel to the northeast coast for a length of about 2,000 kilometers. Corals are the hardened secretions or calcium carbonate outer skeletons of billions of tiny sea animals called polyps. These skeletons attach themselves to the skeleton of dead polyps beneath them, enabling the reefs to grow. It spreads across the whole of Western and most of southern and northern Australia. Made up of ancient, hard, crystalline rocks which are rich in minerals, most of the plateau is flat, broken by occasional rocky ranges. The average elevation of the plateau is 365 meters, making Australia the flattest continent in the world. The height increases only at McDonnell and Musgrave Ranges. Ayers Rock or Uluru is the most famous high point and is visible from more than 80 kilometers on the basis of drainage. The Great Artesian Basin to the north, the Lake Eyre Basin in the center, and the Murray-Darling Basin to the southeast. The Great Artesian Basin, made of flat lands, is the largest artesian basin in the world. It is known for the underground water that is utilized through artesian wells. Except for the rainy season, the lake is dry for most of the time. The Murray-Darling Basin is made by the most important river system of Australia. The Murray, 2,574 kilometers long, is the main river, and Darling is its tributary, the Great Dividing Range or the Australian Alps. Mount Kosciuszko,
2,234 meters is the highest peak of Australia. Land and receive plenty of rain. They are cut by several short, fast-flowing rivers that rise in the Eastern Highlands. स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम जिस कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले तो मैप पे देखें कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे लाई करता है, किस तरह का दिखाई देता है, इसके आसपास क्या है, इससे एशिया कितने दूर है, यूरोप कितने दूर है, इस तरह से थोड़ा रिलेट करें बाकी कॉन्टिनेंट्स के साथ। जब ये चीज आपकी हो जाए उसके बाद फिर हम थ्योरेटिकल पार्ट पे चलेंगे। अब जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर एक ही कंट्री है। तो अब अगर हम बात करें, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है, ये क्वींसलैंड है, ये नॉर्थ साउथ वेल्स है, ये विक्टोरिया है, तस्मानिया है। तो ये सारा जो पार्ट है आइलैंड वाला, ये ऑस्ट्रेलियन कंट्री के स्टेट्स हैं। जैसे इंडिया के स्टेट्स है ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया जो है कंट्री, उसकी स्टेट्स हैं ये सारी। ठीक है, बाकी तस्मानिया क्या है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको समझ आता रहेगा। तो बस आप वीडियो के साथ में नोट्स मेकिंग करते रहे। एक हल्की सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी, अब थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है कौन सा? जो ऑस्ट्रेलिया है, अब मैप पे देखिए इक्वेटर कहां से पास करता है, तो ये वाला जो हमारा कॉन्टिनेंट है ये पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में रन्स थ्रू द मिडल ऑफ कॉन्टिनेंट। अब जैसे इंडिया के बीच से कुछ क्रॉस करता है, क्या क्रॉस करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको दो अप्रोक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 37 डिग्री साउथ जो इमेजिनरी लैटिट्यूडनल लाइन है वो पास करती है। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय कैप्टन जेम्स कुक इन 1770। इसको डिस्कवर किसने किया था? इस तरह का एक आइलैंड भी है, इस चीज का पता किसने लगाया था? तो जो कैप्टन जेम्स कुक, मतलब जब हमारा यानी जब इंडिया में, आप इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है एक तरह से है ना, तो जब यहाँ पे गर्मियां होंगी वहां पे सर्दियां होंगी। अगर आपका कोई रिलेटिव है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब यहाँ पे सर्दियां होती हैं तो वहां पे गर्मियां होती हैं। ठीक है, अब जैसे कनाडा की बात करें, जिस टाइम कनाडा में स्नोफॉल हो रहा है उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, इस तरह से चलता है ये। नाउ अब ऐसा होता क्यों है? तो इसके लिए आपको सन की मूवमेंट पता होनी चाहिए कि सन इक्वेटर पे कब होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कब होता है, वो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं, है ना। चलिए, अब हमें पढ़ना है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। अब अगर आपको याद होगा, आपने ओशियन करंट्स मेरे साथ पढ़ी होंगी, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया का इतना जो पार्ट है इसमें डेजर्ट ही है, राइट। सो द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, मैंने आपको एरिया बताया, उसमें गिब्सन डेजर्ट आता है, सिम्पसन डेजर्ट आता है, द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट आता है एंड द ग्रेट सैंडी डेजर्ट आता है। ठीक है, तो ये सारे मिलकर बनाते हैं, उनको एक साथ बोल देते हैं द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ओके, नाउ हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हर एक कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट हमने पढ़ा है, तो वैसे ही हम इसका भी पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कॉसियुस्को और लोएस्ट पॉइंट है लेक आया। कैनबेरा, M for Melbourne, A for Adelaide, P for Perth and D for Darwin। सिर्फ H है यहाँ पे जिसका कोई मीनिंग नहीं है ना, तो आप उसको पर्थ के साथ जोड़ सकते हैं, अदरवाइज H का कोई मीनिंग नहीं, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, नो इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑस्ट्रेलिया में जो फ्लो करती है कौन कौन सी हैं? मुर्रे, डार्लिंग एंड सॉन। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। काफी कुछ हमने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में जाना। सो आपको एक चीज बतानी रह गई कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैनबेरा है कि मेलबोर्न है, कैसे याद करें। तो ऑस्ट्रेलिया को आप एसी करके याद कर सकते हैं। एसी आपको पता है, गर्मियों में एसी लगाते हैं रूम में, वैसा वाला। तो एसी में ए स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड सी स्टैंड्स फॉर कैनबेरा। नहीं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। ठीक है, खेती बाड़ी पे ज्यादा फोकस है, पशुपालन पे, इन चीजों पे ज्यादा फोकस है वहां पे। ठीक है, ऐसा नहीं इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज भी है, बट इन खेती बाड़ी मतलब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है ना एग्रीकल्चरल, अब तो बेशक शिफ्ट हो रही है बट स्टिल। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड ऑफ वूल प्रोड्यूसिंग शीप।
वूल समझते हैं आप, ऊन। तो ऊन को प्रोड्यूस करने वाली शीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रीड है वहां की, वो है मेरिनो। ओके, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कोरल रीफ। तो कोरल रीफ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पहले कोरल एक्सप्लेन किया है, देन नेक्स्ट वीडियो में कोरल रीफ बताया है, फिर इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर कोरल रीफ्स बताइए, उसकी क्लासिफिकेशन बताइए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब बताएं। तो आपने नहीं देखे हैं, वहां पे जाकर मेरी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड की सबसे लंबी कोरल रीफ कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। मैप में देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? सिडनी। ऑस्ट्रेलेशिया, जिसे हम बोलते हैं ना कई बार यूरेशिया, यूरेशिया मीन्स यूरोप प्लस एशिया। सो व्हाट इज ऑस्ट्रेलेशिया? ऑस्ट्रेलेशिया स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। ठीक है। द लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? वो है लेक आयोरा। ना यहाँ पे हमने बात की है न्यूजीलैंड की, तो थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। सो न्यूजीलैंड की कंट्री, एक कंट्री है, ठीक है। अब देखिए न्यूजीलैंड कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा नीचे राइट साइड में, आप कह लीजिए साउथ ईस्ट में कह सकते हैं आप, है ना, साउथ ईस्ट की साइड में न्यूजीलैंड लाई करता है। ये एक कंट्री है, सबसे बड़ी सिटी है यहाँ पे ऑकलैंड, और इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। बॉक्साइट को प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। हमने आज पढ़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब हमारा सिर्फ एक कॉन्टिनेंट बचता है जो कि है अंटार्कटिका, एंड उसी के साथ हमारा वीडियो, हमारा जो ये सब्जेक्ट था वो हो जाएगा कंप्लीट।